नेक्स्ट सेटिंग डालो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत It is also called as slave dynasty. Slave dynasty. It is also called as slave dynasty. Okay. Sometimes also called as Mamluk dynasty. Mamluk. मैंने पेन काट छोड़ दिया. Thank you. Mamluk dynasty. Mamluk is an Arabic word for slave. Mamluk dynasty, it is Arabic word for slave. That is why it is these sultans are also called as Mamluk sultans. Mamluk sultans. Okay. Write down. Iltutmish, Aibak, Aibak, Iltutmish and Balban. Aibak, Iltutmish and Balban were slave. Aibak, Iltutmish and Balban were slaves in earlier life. Earlier, in childhood. They were slaves. By dint of their courage, bravery, DIND, of their courage, bravery, they became kings. They became kings. Okay. Slavery in medieval period was an institution across the world, not only in India, across world. See, you people read fundamental rights. Okay. Fundamental right is a topic in polity. Right. So why fundamental rights? Just because we are humans. Right? Legal rights, fundamental rights, human rights. Okay, woman empowerment. So why these topics are in politics? Because in history, we have seen that generations have faced exploitation. Understood this? The importance of fundamental rights or being human lies in history. कोई बोले कि गवर्नमेंट जॉब देंगे हमारी गुलामी करो, क्या तुम लोग करोगे? We are citizens of free India. We have rights and we know our rights. Okay. अब देखो, first king Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak. Sometimes BEK also is there. Aibak. के बारे में तो जानते हैं आप लोग? ऐप क्या होता है? ऐप मतलब क्या होता है? कोई कमी? तुम्हारे में क्या कमी है? तुम्हारे में कोई ऐप नहीं है, मेरे में ऐसा कोई ऐप नहीं जो मेरे में ना हो. लेकिन इसमें क्या ऐप था? इसका हाथ ऐसे. कुतुबुद्दीन मीन्स लॉर्ड ऑफ द मून्स. दिखने में बहुत सुंदर. एसोसिएशन से कहा smallpox. It was very common. Here, it belongs from Ilwari tribe. Sometimes they call it Aibak. Aibak was a term. He was maimed. Maimed for us. Maimed na matlab kya? Maimed. Clear?
इसकी भी कहानी सुना दो एक बार में, फिर देखेंगे ऐसे आप लोग यू विल फाइंड हार्ड, राइट। देखिए आखिरकार गौरी को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके जाने के बाद में उसकी सल्तनत को संभाल पाए, वो सारे काम कर पाए जो गौरी ने किए, क्योंकि गौरी हर बार शटल कॉक की तरह गजनी और दिल्ली नहीं आ सकता था। He will be present only for the big adventures, not for the small ones. So he deputed his own military general, who was given the titles of Sipe Salar. Sipe Salar means army commander. And of course, the title was one more title. He was called Malik. Okay. He never took the title of Sultan. ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। इसको लख बख्श या लख दाता क्यों बोला गया? लख बख्श इसको क्यों बोला गया? ऐसा हुआ जब पैसा मिलता था, जब ये लोग धन लूट लेते थे तो धन बांटा जाता था। तो एक बार गौरी ने ऐबक को दरबार में बुलाया, उसको बहुत सारा पैसा, गोल्ड कॉइन बनाऊंगे। तो द मोमेंट ऐबक लेफ्ट दैट place, he distributed all the gold coins among the servants of God. Gauri called him back and asked, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमको पैसा दिया and you distributed the hard-earned money. बोले जब मेरे पास तुम्हारे जैसा सुल्तान है तो ये सोने के सिक्के मेरे किस काम है? So he proved that I am a loyal servant and you are the best master. Understood this? Second opinion is that he used to use that money and assist the poor Muslim women, or you can say the poor people. That is why he was called Lakhtaka or Lakhdaksh. He was called Kiran Khua, sometimes Puran Khua. This man had an ability to sing the verses of Quran. That is why he was called Quran Khua. He defeated the Rajputs. He was participating in the battle of Chandazam. And he was the person who started what is called as Muslim architecture in India. You people must have heard about Qutub Minar. Qutub Minar is a very famous monument. It was started by on the advice of God. On the advice of God. Here, in memory of, ये किसकी याद में बनाया गया? गौरी या काकी? Who was Kaki? Full name. Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. He was a Sufi and he was alive. कोई मर जाए उसकी याद में कुछ बनवाओ तो समझ में आता है, but Qutbuddin Bakhtiyar Kaki was the greatest Sufi saint of Delhi at that time. He was alive. It may be possible that this monument was erected and later it was donated, or it was, you can say that the people started calling it was built in the memory of Qutbuddin Bakhtiyar. आप लोगों ने सुना देखा होगा, it is a very favorite destination. Earlier also, the young couples of Delhi, they used to go up in the Minar. वहां से आप सबको देख सकते हो, आपको कोई नहीं देख सकता। क्लियर? तो पहले पांचों फ्लोर खुले थे, क्लाइंब एज मच एज यू कैन, लेकिन फिर एक दिन अफवाह हो गई कि मीनार गिर रहा है। एवरीबडी केम अंडर पैनिक। मीनार तो नहीं गिरा, 27-28 बच्चे बन गए। So government locked for 4 stories. Now it is only 1 story which can be used. Okay. Second important monument which was built by Abbott is called as Adai Din Ka Jhopra. Adai Din समझते हैं आप? 2.5 दिन। 2.5 दिन में कोई झोपड़ा बन सकता है? Is it possible? It was a Sanskrit college which was converted into mosque. It was a Sanskrit college converted into mosque. देखिए जो नए लोग आएंगे, they had some different traditions of worship. ये लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे? There should be some place. And these invaders were not builders, they were invaders. So what they did, they captured some place, named it,
or you can say renamed it, used it for their own purpose, maybe for religious purpose or for residential purpose. So these buildings which were already standing in India were captured, some were brought down, razed to the ground, and some were used. So this college was made mock. This Sanskrit college was made mock. And from where it got its name, like Jinka Chopra, जिसकी ताकत होती ना सर, सत्ता उसी की। When Maratha people came to power, Maratha in 17th century, एक बार बहुत तेजी से तूफान चल रहा था राजस्थान में। 10 स्टॉर्म्स होते हैं, धूल भरी आंधी चलती है और इतनी भयानक आंधी होती है कि यू कैन नॉट लीव योर हॉर्सेज एंड एनिमल्स आउटसाइड। तो दिस मराठा फोर्स एंटर्ड दिस मॉक। उन्होंने तलवारें निकाली और बोला साहब यही सही। जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं को बताया था, मराठों ने मुसलमानों को बताया, चलो तुम लोग निकलो, हो गया बहुत मस्जिद मस्जिद। अब ये क्या है, अढ़ाई दिन का चोपड़ा। That is strong. It lasted for 2.5 days. So this building got its new name called अढ़ाई दिन का चोपड़ा। याद रहेगा? आगे बढ़े। अब देखिए, the main problem with Aibak was he knew the politics of the court of Gauri. ये लाहौर से राज करता था, लेकिन ये गौरी के दरबार को जानता था। ऐबक ये भी जानता था कि यहां से माइग्रेट होकर के आने वाला कोई भी सोल्जर गौरी की पढ़ाई करेगा, जलडोज की पढ़ाई करेगा, राइट, और यहाँ की खबर वहां पहुंचाएगी। So Aibak had a dream in his mind to establish his own empire, but his destiny was not so. He died while playing polo. Polo was called chopper. क्या बोलते थे polo को? Chopper. अब हुआ क्या? There are different stories. कुछ ये कहते हैं कि ऐबक ने एक राजा का सर काटा था और उसी के सर से ऐबक पोलो खेला। See, history is very violent also. Okay, right? And I'm not adding spices in my tongue. लेकिन ऐबक को ये नहीं पता था कि जो नया घोड़ा शाही अस्तबल में आया है वो घोड़ा उसी राजा का। ऐबक उसी घोड़े पे सवार हुआ जिसके मालिक के सर से वो पोलो खेला, और जब उस घोड़े ने देखा कि उसके मालिक का सर लगा हुआ है बॉल की जगह, वो घोड़ा फंस। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल नो हॉर्स राइडिंग? किसी ने घोड़सवारी करी? हम लोग घोड़े पे कभी नहीं बैठे। घोड़ी पे नहीं, घोड़ी पे आदमी बैठता है जब उसकी शादी होती है। घोड़े पे when he is learning this horse riding आपको भी पता कहीं कभी नहीं करती। तो घोड़ा जब पलटता है ना, तो जो सवाल होता है वो तुरंत हटता है। घोड़ा एक दो बार कूदेगा, वो बताएगा कि अगली बार मैं पलट रहा हूँ, वही पलट। घोड़ा पलटती क्या होगा? इट विल क्रश योर बोन्स। घोड़े का इतना वेट होता है। एक अच्छे घोड़े का, गधे टाइप घोड़ा खच्चर टाइप लोगे तो वो तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तो तुमको आगे को पड़े। ठीक है, जो नहीं होता कि नस्ल के घोड़े होते हैं, अरबी इराकी, ये वो घोड़े थे। One story. Second story is he fell from the horse and his spine was broken. कमर टूटने के बाद आदमी वैसे ही बेकार है। Here, Aibak had a son who succeeded Aibak, and his son was called with the name आराम शाह। नाम से ही पता चल रहा है ये कितना बड़ा आरामी है। बॉस he was more interested in WWE. वुमेन माइंड है जो भी है। सो अब ये वो दौर था, देखिए, जो गलती होती है कुर्सी या ताज या तख्त, ये सबके नसीबे में,
और इस पे कॉम्पिटेंट बंदा ही बैठे। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो बेटर है कि आप मत बैठे, बिकॉज दिस टाइम when Abba died in 1210, it was very turbulent times. Already the danger has started, and the name of this danger was Genghis Khan. Genghis Khan had already entered the Muslim empires of this age. क्या नाम था? Genghis Khan. And the people who were in Delhi, they knew that we need a competent king as Sultan. Nobody like Aram Shah and these people. ये लोग राज नहीं कर पाए. So the people invited Iltutmish, who was governor of Badaयूं. Badaयूं is a place 200 kilometers in UP, away from there. Iltutmish was already present there. He was governor. The Amirs, बोलते हैं तो अमीर हो गए. Amir is word है. So actually the word है Amir. The people who sit in the court. So the Amirs of Delhi called Iltutmish and invited him to have a seat in Delhi and to establish the Sahaba. But ये बात आराम शाह को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि लाहौर was seat of Ahmad. Not there. आराम शाह will come and fight. Iltutmish very easily defeated आराम शाह. उसको पता था कि किसी काम का नहीं है. Finally, just 6 months after the death of Ahmad, his family came to an end. And Iltutmish, who was not son of Ahmad, slave of Ahmad, he became what is called as the real founder of his hands. Yeah. अब Abbott के बारे में लिखो, then we will discuss Iltutmish. Qutbuddin Abbott. He was named, लिख लिया? Okay. लिखो, he was called Lakbaksh. Lakbaksh. Lakdata. He was called Lakbaksh. Lakdata. Lakbaksh. Lakdata. The giver of millions, giver of lakhs, giver of lakhs. Here, he took the title of Malik. He took the title of Malik. He established headquarters at Indraprasth. He established his headquarters at Indraprasth. इंद्रप्रस्थ का मतलब इंद्र के हाथ. इंद्र को धनंजय बोला गया है. ठीक है. ये वही 5 गांव थे जो पांडवों ने मांगे थे. आपको महाभारत पता होगी कि हमको सिर्फ 5 गांव दे दो. आखिरकार वो 5 गांव कौन से थे? तो वो थे सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, ऐसे जितने भी पद है वहां पर वो सारे गांव मांगे गए. अंडरस्टूड दिस? राइट. इंद्रप्रस्थ इज इन दिल्ली. Here. But because Abbott was having his headquarters after the defeat of पृथ्वीराज चौहान and गोविंद राय को भी गौरी ने मार दिया था. सेकंड बैटल ऑफ तराई के बाद उसने जब सैनिकों का निरीक्षण किया तो उसने देखा कि एक सैनिक ऐसा भी जख्मी पड़ा है जिसके होंठ और गाल सब कटा हुआ है. वो समझ गया कि ये गोविंद राय है जिसने मुझे भाला मारा था, और ये अपनी तलवार निकाली और तो गोविंद राय died as a heroic death after the second battle of Tarai. Army returned, Abbott returned to Indraprasth. यहीं से he started to control the adjoining territories. Indraprasth became his headquarters and Abbott built the fort of Lalkot. He built the city of Lalkot. ऐसे लिखो. Abbott built the city of Lalkot. The first major city, Lalkot, Lalkot, Lalkot. The first major city of Delhi during medieval times. The first major city of Delhi during medieval times. Earlier it was called लालकोट के पहले इसको क्या बुलाते थे? Earlier it was called किला राय पिथौरा. Earlier it was called किला राय पिथौरा. Prithviraj was also known by the name Rai Pithora.
Earlier it was called Kila e Rai Pithora. What it means, right? To rely on the remains of Kila Rai Pithora above with Lal Ko. Understood this? आगे बढ़े? Clear? कोई इंपॉर्टेंट रखना 4 साल में ये क्या करेंगे टाइम पीरियड लिख लो 1206 से 1210 1206 से 1210 he built Qutub Minar. He built Qutub Minar. First story. He built Qutub Minar. First story. अब एक बच्चा पूछता है सर इसने फर्स्ट बनाई थी बाकी किसने बनाई थी इल्तुतमिश ने बनाई थी फिर पूछता है नींव किसने किसने डाली थी भाई नींव बनेगी तभी तो फर्स्ट आएगा 0-1 होगा ना That's what it is. So the first story was built by Ever, then by in memory of Kutubuddin Bakhtiyar Kaki. It was built in memory of Kutubuddin Bakhtiyar Kaki. Ever built, next point, ever built the first mosque in Delhi. देखिए पहली मस्जिद केरला में बनी है ध्यान रखना यही ब्रैकेट में लिख लो द फर्स्ट मॉस्क वाज बिल्ट इन केरला ओके राइट बट इन दिल्ली द फर्स्ट वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ओके इट वाज कॉल्ड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क Clear? Kuwwat means the power, axis. Okay, Kuwwatul Islam Mosque. It was built by using the remains of. It was built by using the remains of 27 Hindu and Jain temples. It was built by using the remains of 27 Hindu and Jain temples. बढ़िया लोग थे आए मंदिर तोड़े अब वो मटेरियल घर तो लेके जा नहीं सकते थे बोले दोबारा लगा दो इसको क्या बनाएंगे मॉस्क बना तो जो मूर्ति उसमें लगी थी वो पट पट तोड़ी हथौड़े से दोबारा खड़ा कर दिए बढ़िया है क्यों एटलीस्ट वी हैव दैट रिमेन्स स्टिल भले ही वो एक मॉस्क के रूप में ऊपर है तो वो हिंदू रिमेन थी एंड नोबडी कैन डिनाई इट कि हमारे लोगों के पास कुछ काम ही नहीं था बैठे लेके वो श्रेणी और हथौड़ी सर मूर्ति बनाई है देखने वाले पहुंचने क्या बनाया दिखा दो We excelled in the revolution of stone. India was under British rule when this revolution of glass started. Microscope, telescope. अगर तब हमारे पास माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आ गया होगा ना तो हम पता नहीं आज कहाँ होंगे This is question for me that India excelled in revolution of stone but failed in glasses. क्योंकि बाकी हर चीज में ग्लास आपका फोन देख लो आपका टीवी देख लो राइट तो our ancestors were so important for world history. जितनी वेल्थ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स में है उतनी पूरे वर्ल्ड में नहीं Even the pyramids of Giza and all are nothing when you look at the temples of Giza. Why? They have kept the blocks. Pyramids क्या है? They are very simple structure, very heavy in formation. But Indian temples have intricate designs, and each design has some logic. When I will teach you art and architecture, you will feel it. In of course, you are correct. Understood this? So at least we have that remains of the temple with us. And अगर ये सब कुछ खत्म हो जाए, suppose the world ends tomorrow in flames, nuclear हो गया, nuclear blast हुआ और winter आ गया, ये हो गया, everybody died. Then also for next 10,000 years,
if an alien ship lands in India, they will have the remains of a civilization. Rest all world will not exist. So this is the importance of these monuments and remains. They cannot be burned. सारी बिल्डिंग जितनी आपकी सीमेंट विमेंट के सब खत्म हो जाएगी. Everything will be level to the ground. But not these temples. आगे बढ़े. Right? इतना क्लियर हो गया. Abbas wanted to establish his own dynasty. Abbas wanted to establish his own dynasty. He wanted minimum interference. He wanted minimum interference from Ghazni. He even captured Ghazni. He even captured Ghazni after the death of Gauri. After the death of Gauri. So which Delhi king captured Ghazni? It was Abbas. Okay. But he returned to Lahore. But he returned to Lahore. Returned to Lahore. He failed to materialize. He failed to materialize his dream. He failed to materialize his dream. Unfortunately, died. Unfortunately, died while playing polo. Unfortunately, died while playing polo. Chaugan, Chaugan. Playing polo, Chaugan. Okay? That is not इसकी कमर टूटी थी या टांग टूटी थी. मैं आपको क्यों बताता हूं so that you can differentiate between what is more important and what is less important. He died while playing Chaugan. It is sufficient. Chaugan is modern day polo. Okay, that are legendary stories कि वो खोपड़ी से ही खेल रहा था. इतिहास में जो चाहता है जो उठा के लिख देता है. Understood this? Okay, so you may be reading these stories in future in some book. Don't believe on that. We have to believe on history which has been approved by government of India. इसलिए चाहता हूँ only read NCERT, just leave it. और मेरे पढ़ाने के बाद में nothing is left. We are in the waters at the very depth of the sun. After this, philosophy will start. जब आप समुद्र के तल पे होते हैं तो आप सबसे डीप में होते हैं. लेकिन अगर आपने थपथपा दिया धूल उठती. Okay, so I don't want to make you people confused by that dust. Whatever has been laid to rest. Okay, what we should know that Abbas died while playing polo. He was succeeded by his son Aram Shah. WWW. Succeeded by his son Aram Shah. More interested in wine and women. The Amirs of Delhi invited Iltutmish, the governor of Badaयूं, Badaयूं लिखोगे Badaun, the governor of Badaयूं. He defeated Aram Shah. And established Delhi Sultanate at Delhi.
Understood this? Established Delhi Sultanate at Delhi. अब लिखिए नेक्स्ट किंग इल्तुतमिश. नेक्स्ट किंग इल्तुतमिश. चलो इल्तुतमिश शुरू करें. देखिए जो लिखा होता है ना वही होता है. डेस्टिनी में जो लिख गया होगा वो. जिस बच्चे को राजा बनना लिखा है वो राजा बनेगा. कोई राजा के यहाँ पैदा होकर राजा बनता है, कोई रोड पे पैदा होकर राजा बनता है. अंडरस्टूड दिस? इल्तुतमिश जब पैदा हुआ ही वाज सन ऑफ इलम खान. खान एक टाइटल है मंगोलिया में. खान ये नहीं शाहरुख खान सलमान खान ये सब नहीं होता है. खान मीन्स अ पर्सन हु हैव आर्मी ऑफ 10,000 horses. So Khan is a title, it is not surname. Understood? So he was, Iltutmish was son of Ilam Khan. बचपन से ही ये बच्चा दिखने में बड़ा सुंदर और बोलने में बड़ा स्मार्ट था. ये पट पट बोला करता था. इसीलिए इलम खान के बाकी औलादें के इल्तुतमिश के बाकी भाइयों ने सोचा अगर ये बच्चा बड़ा होगा तो सुल्तान यही बनेगा. एक दिन उन लोगों ने एक प्लान बनाया. इल्तुतमिश को बेहोशी की दवा दे दी, बोरे में पैक किया और मंगोलों की मंडी में फेंका. इल्तुतमिश जब होश में आया, क्योंकि वो छोटा था, बच्चा था, वो नहीं समझ पाया कि ये मंगोल कौन सी भाषा बोल रहे हैं. ये मंगोल उसको उठाते, क्योंकि इल्तुतमिश के चेहरे पर वो सारे निशान थे जो ये बता रहे थे कि ये एक दिन लड़का आगे बढ़कर सुल्तान बनेगा. इसीलिए उसको जमालुद्दीन चुस्त काबा ने खरीदा. इस आदमी का नाम था जमालुद्दीन चुस्त काबा. इसको चुस्त काबा इसलिए बोलते थे क्योंकि उस समय जब लोग फैले हुए कपड़े पहनते थे तो ये चिपके हुए कपड़े पहनता था. This man was highly fashion conscious. चुस्त काबा. And of course very famous. जमालुद्दीन चुस्त काबा एक बच्चे को अपने साथ ले गया और उसने उसको पेश किया. इसको निशापुर के काजी को भेजा. By passing under many hands, finally Iltutmish reached. अब बड़ा हो चुका था, इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी. ये दिखने में बहुत स्मार्ट और उतना ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट. ये इतना सुंदर और इतनी बढ़िया बातें करता था कि गजनी की नहल की रानियों तक ये खबर पहुंच गई कि भाई साहब एक बड़ा जबरदस्त गुलामी है. Everybody, even women and men, were interested in buying this slave for themselves. लेकिन इसको बेचने वाला जो निशापुर का काजी था जमालुद्दीन चुस्त काबा था, इसने बड़ी ऊंची कीमत लगा दी. इसने कहा मैं इस गुलाम को सस्ते में बेचूंगा. जब गौरी को पता चला तो उसने भी जमालुद्दीन से कहा मुझे कितने का ये बेच दो. बोले नहीं ये कीमत कम है. इस पर गौरी नाराज हो गया और बोला कि अब ये गुलाम मेरे राज्य में बिकेगा. तो his sale as a slave in the territories of Gauri was prohibited. क्योंकि ऐबक भी अपने जीवन में गुलाम रहा था. जमालुद्दीन जब ऐबक से मिला तो उसने अपनी परेशानी बताई. ऐबक ने कहा कोई बात नहीं, इस गुलाम को मेरे साथ हिंदुस्तान ले चलो, मैं गौरी की टेरिटरी के बाहर खड़े होकर इसको खरीद लूंगा. Abbott paid the amount which was equal to 1 lakh cheetahs. It was a very heavy amount for this. Abbott appointed Iltutmish at various administrative posts, like Amir Akur, the master of royal stables, Shahi Ghurtawar Sena ka Adhyaksh. Finally, Iltutmish was made governor of Bandha when Abbott died. Abbott even married his own daughter to Iltutmish. इल्तुतमिश ने ये साबित कर दिया था कि उससे अच्छा कोई गुलाम था ही नहीं, क्योंकि जब झेलम के किनारे युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के एक वार से एक जहां झेलम का जहन्नुम पहुंचता था. गौरी ने जब दोबारा उसकी मुलाकात इल्तुतमिश से हुई तो ऐबक से हुई तो उसने पूछा ये कौन है. तो ऐबक ने गौरी को याद दिलाया कि ये वही गुलाम है जिसको बेचने पर तुमने पाबंदी लगा. You restricted the sale of the slave in your dominions. Gauri was impressed. He manumitted Iltutmish
before his death in 1206. It seems that Gauri realized that one day this boy will continue his work, the extension of his existence. Understood? इल्तुतमिश सुल्तान तो बन गया, पर उसके सामने बहुत बड़ा खतरा था। कई खतरे थे। देखिए, आप उतने ऊंचे जाएंगे जितने बड़े खतरे फेस करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बंदे सामने जाके खड़े हो जाने, राइट। इल्तुतमिश के सामने समस्या ये थी कि दिस हिंदुस्तान वॉज अ कंट्री ऑफ हिंदूज and only 1% ruling class was Muslim. The feudal lords were not ready to accept a Muslim sultan. Feudal lords समझ रहे हो, जो यहाँ देशमुख होते हैं, यूपी में जमींदार होते हैं, the rural aristocracy, देशमुख, देशपांडे, like these people like this. Okay. What happened that Iltutmish was facing both problems, internal and external. He even made his own people his enemy by killing Aram Shah. जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को इल्तुतमिश ने मारा, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सारे लोग इल्तुतमिश की तरफ ही खड़े हो गए? कुछ उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। और सबसे बड़ा जो खतरा इल्तुतमिश के सामने था, वो बाहर से नहीं था, अंदर से नहीं था, वो बाहर से था। That danger was known in world by the name of Genghis Khan, the curse of God. ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया श्राप। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में हुआ था। ये बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। पापा का नाम तिमुचिन था। चंगेज जब पैदा हुआ तभी अपनी छोटी उंगली को दबा करके मुंह में खून पी रहा था। इसके शरीर पे खून के धब्बे पड़े थे। इसको पैदा करने वाली दाई भी चिल्लाई, ये बच्चा और खून पिएगा। चंगेज जब 8 साल का हुआ, उसने अपने भाई को इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि अगर ये जिंदा रहा तो ये खान बनेगा। आप अपने भाई से मोहब्बत कर सकते हैं, मैं नहीं करता, इतिहास नहीं सिखा। क्योंकि तुम्हारे पास पिता के मरने के बाद बंटवारे के लिए नहीं क्या सिवाय मोहब्बत। अगर आपके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति होती तो आपके अपने भाई बहन आपको दुश्मन दिख रहे होते। Understood this? This is hard truth, hard reality of life. चंगेज ने अपने भाई को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि पिता के मरने के बाद उसका बड़ा भाई खान बनेगा। इस पर पिता बड़े नाराज हुए। कबीले वालों ने चंगेज को मारा नहीं, सजा भी दी। उसको जंगल में भेज दिया गया। जा, तेरी किस्मत होगी तो दुनिया तो भेड़िए के साथ रहेगा या भेड़िए से मारा जाएगा। चंगेज वहां भी नहीं मरा। बहुत खतरनाक इंसान था। ये जंगल में कभी कुत्तों के साथ किया, कभी भेड़ियों के साथ किया। लोग कभी कभार उस तरफ जाते थे तो चंगेज को जानवरों के साथ खेलता हुआ देखते। चंगेज के पिता की मृत्यु के बाद यही कबीले वाले घूमने लगे चंगेज को जंगलों में। उनको उम्मीद थी कि ये जिंदा होगा। चंगेज जिंदा। 8 साल बाद जब इसके पिता और भाई मर चुके थे, तब कबीले वाले इसको वापस लेकर के आए, ये सोच करके कि अब यही खान बनाया जाएगा क्योंकि इसी में वो खून है। चंगेज खान अपने समाज का खान बन गया और बोरते नाम की लड़की से उसकी शादी। बोरते वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उसको भी इसके दुश्मन उठा के ले गया। चंगेज ने कुछ नहीं किया, बोले नहीं। चंगेज ने ना बचपन में कुछ खास किया, ना जवानी में कुछ खास किया, लेकिन जब वो 40 साल का हुआ तो उसको समझ आई कि अगर दुनिया में लड़ाई इसीलिए है क्योंकि राजा लड़ते हैं। अगर दुनिया में एक ही राजा होगा तो लड़ाई नहीं होगी। चंगेज वो राजा बनने निकला कि मैं दुनिया के सभी राजाओं को हरा दूंगा। He started his political career at the age of 40. He killed 11% of the world population. जब चंगेज था दुनिया में ऑक्सीजन बढ़ गई, क्योंकि उसे खींचने वाले लोग ही नहीं।
अगर आज भी कोई सामूहिक कब्र मिलती है तो इतिहासकार ये मानते हैं कि इन लोगों को चंगेज की सेना ने मार के दफनाया होगा। चंगेज जब भी किसी शहर पे हमला करता था तो बच्चे और आदमियों को मौत की घाट उतार देता था, केवल औरतों को जीवित छोड़ा जाता था, और कुत्ते और बिल्लियों को भी ये लोग मार देते थे। घटाओ रात को मौत। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ब्रूटैलिटी ऑफ चंगेज। चंगेज के पास उस जमाने की AK-47, उस समय बड़े बड़े धनुष चलते थे, 6-6 फीट बड़े धनुष। एक आदमी खड़े होकर के एक तीर खींचेगा, दूसरा धनुष संभालेगा, तीसरा निशाना लगाएगा। चंगेज ने बोला ये क्या है। चंगेज ने छोटे छोटे धनुष बनाए। छोटे धनुष बाण होने की वजह से चंगेज के छोटे छोटे सैनिक घोड़े पे बैठ करके हर तरफ निशाना लगाए। कौन सा वेपन अच्छा था, ये छोटा वाला या बड़ा वाला? आपको एक और हैंडी आइटम। चंगेज ने अपने सैनिकों को सिल्क का आर्मर पहनाया। सिल्क को जब आप फाड़ेंगे तो वो फटेगा नहीं, वो फैले। कभी गौर किया? सिल्क एंड ऑल दीस आइटम। जब ये सिल्क का आर्मर उसके सैनिकों ने पहना तो सामने वाले सेना के तीर आकर के लगते तो थे, पर वो अंदर नहीं पहुंचते थे, इसीलिए उसके सैनिक मरते। एक तीर लगा, 2 लगा, 3, 4, सामने वाला डर गया, बोले यार ये तो मरता ही नहीं, ये तो भूत है, भागो, भूतों की सेना आ गई। So this was the effect of Genghis Khan's army, that their soldiers were never dying. Clear? मैडम, अगर चंगेज ने आपसे 10,000 सैनिक मांगे कि 10,000 सेना भेजो, मैं युद्ध लड़ रहा हूँ यूरोप में, और अगर आपने नहीं भेजी तो चंगेज वो युद्ध छोड़ के आएगा, पहले आपको युद्ध करेगा। अगर आप काबिल हैं तो चंगेज की सेना में है, और अगर आप ना काबिल हैं तो आप उस सेना में घुस नहीं सकते। He started the system of meritocracy. No reservation, nothing. चंगेज किस राजा से मिलता था तो बोलता था मैं आया हूं तुझे सजा देने, ऊपर वाले का भेजा गया विश्वास में इतिहास में लिखित है। अंडरस्टूड? एक बार एक राजा ने बहुत बड़ा महल बनवाया, आसपास एक खाई खुदवा के पानी भरवा दिया और डिक्लेयर कर दिया, अब देखता हूँ चंगेज कैसे आएगा। चंगेज ने बोला चंगेज उड़ के जाए, जिसको देखना है वहां पहुंचे। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे देखने के लिए चंगेज उड़ेगा। उनको लगता है चंगेज उड़ेगा। चंगेज ने उन्हीं लोगों को मरवा के उनके डेड बॉडी पानी में भिजवा कर लाश के सड़क के ऊपर आ गई। चंगेज चल के चला गया, बोले आया हूं तुझे श्राप। This was Genghis. Genghis Khan captured 40% of the world area, murdered 11% of the world population. अगर इस्लाम की दुनिया में किसी का नाम लेना हराम है तो वो चंगेज खान। Genghis was a Buddhist, a religion of peace. He established peace, but in different direction. There was nobody to breathe. Okay, right? Genghis defeated Alauddin Khwarizm Shah, the Shah of that time. अलाउद्दीन खुद अपनी जान बचा करके कैस्पियन सागर की तरफ भागा जब उसका बेटा जलालुद्दीन मंगबर्नी भारत की तरफ आ गया। उस समय भारत में 3 लोग राज करते थे, नसीरुद्दीन मुगच्चा सिंध में, इल्तुतमिश दिल्ली में, और ताजुद्दीन यल्दोज गजनी। ताजुद्दीन यल्दोज तो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन मंगबर्नी ने इल्तुतमिश को चिट्ठी लिखी, उसने मदद मांगी, मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, मेरी मदद कर। इल्तुतमिश समझ गया कि डियर, अगर तुम्हारी मदद करी तो मैं क्योंकि तुम्हारे पीछे जो लगा है वो चंगेज खान। चंगेज खान मंगबर्नी की सेना का पीछा करते करते सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। चंगेज खान when he was chasing Jalaluddin Mangbani, he reached on the banks of the Indus. मंगबर्नी भी सिंधु नदी के किनारे पहुंच चुका था,
फैसला मंद बर्दी को लेना था, या तो पलट करके चंगेज की सेना का सामना किया जाए और नहीं तो दुख की लगा के सिंधु नदी पार की जाए। आप बोलते थे क्या कर, तुम भी दुख की लगा दो। क्योंकि पानी से डूब के मरना फिर भी बढ़िया है चंगेज की सैनिकों के हत्थे चढ़ने। अंडरस्टूड। मंगवर्णी पूरी सेना लेकर के सिंधु में कूद गया। किस्मत अच्छी थी, उस समय पानी कम था, बच गया। चंगेज ने वहीं खड़े होकर के बोला था, दिस मंगवर्णी इज अ वर्दी सन ऑफ अ वर्दी फादर। क्योंकि चंगेज अगर मंगवर्णी को पकड़ लेता तो अलाउद्दीन खालिद शाह को कूदने को टिका देता। क्योंकि बाप को अगर पकड़ना है तो बेटे को पकड़, और बेटे को दबाना है तो बाप को पहले दबाओ। कानून की लड़ाई में सपोला नहीं पकड़ते, नाक पकड़ते। बाप बेटे की ऐसी ताकत होती है, बाप की जान बेटे में और बेटे की जान बाप में। इल्तुतमिश ने भी चिट्ठी लिखी कि मंगवर्णी, द रिप्लाई ऑफ इल्तुतमिश वाज वेरी गुड, वेरी डिप्लोमेटिक। ही सेड, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, तुमको सूप नहीं करनी वही। और कसम से अगर उस दिन चंगेज खान ने सिंधु पार कर ली होती तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सतलत कभी शुरू ही नहीं होती। और हम लोग या तुम लोग इस क्लास में 40-50% बच्चे चाव में बैठे होते, क्योंकि चंगेज केवल युद्ध नहीं जीतता था, टेरिटरी नहीं जीतता था, वो डीएनए ही चेंज कर देता था। अभी भी यूरोप में टेस्ट होता है वेदर यू हैव जीन्स और चंगेज खान और नॉट, एंड द पीपल हु गेट दीस जीन्स दे फील वेरी प्राउड कि हमारी टकराव हुआ था कभी 12वीं शताब्दी में। Yeah, so this was Genghis Khan. We are getting a partial reference because Genghis Khan does not, his empire does not, or you can say the topic of Genghis Khan is not in Indian history. This much reference. और यही सवाल यूपीएससी ने पूछा था जलालुद्दीन मंगवर्णी के बारे में, अभी 2 साल पहले की बात। चंगेज को बताओ। अंडरस्टूड। इल्तुतमिश रातों को कभी सोया नहीं, वो जानता था कि कौन सा खतरा उसकी सीमा पर है। इल्तुतमिश ने कभी नसीरुद्दीन कुबच्चा पे हमला नहीं किया, वो जानता था कि मंगवर्णी मेड फ्रेंडशिप विद जाट्स एंड खोखर्स। जाटों और खोखर, क्योंकि उन लोगों को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो ताकतवर हो। जाटों और खोखरों के साथ मंगवर्णी मिल गया, उसने नसीरुद्दीन कुबच्चा का जीना मुश्किल कर दिया। बिकॉज नाउ ही वांटेड टू बिकम द किंग ऑफ सिंध। सिंध क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सिंध लाइज इन ऑन द माउथ ऑफ रिवर इंडस। एवरी डे एवरी बोट विल बी देयर। क्लियर? ऊपर सिल्क रोड से जब भी, जैसे चंगेज खान ने जब हमला किया, देखिए डिस्ट्रिक्ट इंडिया छोटे ही बना देता हूँ। अब जब चंगेज ने इस पूरे एरिया को खत्म कर दिया तो ट्रेड कहां से जाएगा? चाइना से आने वाला है। दिस ट्रैफिक वाज डाइवर्टेड हियर, फ्रॉम हियर इट विल गो बाय द so that is why Mangavarni decided that he captured this area of Sindh, which was ruled by Nasiruddin Subhai. Iltutmish also wanted to capture this, but he was knowing that doing any mischievous activity here will invite Genghis Khan. And if Genghis Khan will come, India is only 2.4% of the world. Genghis was having 40% of the world. 40 plus 2.4 कितना हुआ? 42.4. चंगेज को फर्क नहीं पड़ा, हमको फर्क पड़ जाता। तो इल्तुतमिश saved his empire, saved the infant Delhi Sultanate, not just by sword, but by his own courage. There are a number of factors. That is why Iltutmish is called as the real founder of Delhi Sultanate. Aibak may be founder of Delhi Sultanate, but the real founder was. अब इल्तुतमिश क्या करेगा? He was now more interested in internal reforms. Internal reforms क्यों? Iltutmish was facing both problems, external and internal. Iltutmish के सामने क्या problem? The feudal laws. These feudal lords were Hindus. अब एक हिंदू जमींदार क्या एक मुसलमान राजा की बात मानेगा? नहीं मानेगा। With first opportunity, they will revolt.
So Iltutmish decided to establish a very good system of administration, ICTA. ICTA system क्या था? Iltutmish appointed इक्तादार. इनका जॉब क्या था? एक इक्तादार का काम क्या था? He have to control these laws. Okay, he have to collect revenue. He have to maintain an army. क्योंकि ये दोनों काम बिना आर्मी के नहीं होंगे. पुलिस की बात छोड़ दीजिए. पुलिस was no force at that. Army will control during peace time these feudal laws. Army will suppress the rebellions, and farmers will do the agriculture. There is a universal saying in history, और ये आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी आंसर में, ये कभी गलत नहीं होती. सेइंग क्या है? A king wants to rule, but he cannot rule alone. He needs army to rule. Army will not help without salary. Army needs salary, and salary will come from where? Salary will come from revenue paid by the farmers only when there is peace and stability. This is the golden rule. Every king knows. Even Modi ji knows this. That is why every government in India talks about agriculture reforms, land reforms. Why? The money in agriculture-based economy will come from land itself. भाई हम लोग ट्रेड करके या सर्विस करके जिंदा नहीं है. Why India is not hit too much by the sanctions of America? Because our economy is still agriculture-based economy. We are a big market. We are consuming what we are producing, and we are so much thirsty and hungry that we can consume everything of the world. मेरी बात समझ लो. हम वो देश है जहां मारुति 800 भी चलती है तो रेंज रोवर भी चलती है. अब 50 लाख करोड़ रुपए की डिफेंडर लेकर के रिक्शे के पीछे लगा के खड़े हो. अरे तुम बेवकूफ हो यार. रिक्शे के पीछे रिक्शा लगाओ, नहीं तो साइकिल लगाओ. हैवी ट्रैफिक में एक रिक्शे वाला, वो बैटरी रिक्शे वाला तुमको बैग बत्ती दिखा के निकल जा रहा है क्योंकि उसके पास निकलने की जगह है. तुम फंस जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी बढ़ गई. What is this? मैंने कभी गाड़ी खरीदी नहीं. ठीक है, इसीलिए नहीं खरीदी. किसका काम इंपॉर्टेंट है, रिक्शे वाले का या डिफेंडर वाले का? रिक्शा वाला आगे जाके बीड़ी पिएगा, बोले सिग्नल पे गाड़ी रुकी है नहीं. डिफेंडर वाला उसी गाड़ी के एसी बैठ के परेशान है कि मैं मीटिंग को लेट हो रहा हूं. आगे बढ़े. अब देखो, then you have to control the local elements. What Iltutmish did was he appointed iqtadars. This system of appointing a person responsible for the collection of revenue and suppression of the rewards, he will be held responsible. अब suppose Iltutmish started ruling Maharashtra, तो वो क्या करेगा? आपको उसने पुणे दे दिया, you were made इक्तादार ऑफ पुणे. मैडम आपको दे दिया बॉम्बे और उनको दे दिया सोलापुर. तो तीनों जगह आपको दे दिया. ऐसे उसने पूरा महाराष्ट्र बांट दिया. क्लियर. अब क्या होगा कि सोलापुर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 10 लाख. हर जगह से 10-10 लाख आ रहा है. इल्तुतमिश को डाउट हो गया कि यार बॉम्बे वाला इतना थोड़ी कर रहा है, तो वो क्या करेगा? देयर वाज नो सिस्टम ऑफ ऑडिट इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम. Even land records were kept on power plates, right? So he used to transfer them. सोलापुर वाले को बॉम्बे भेज दो, बॉम्बे वाले को भेज दो. अब नेक्स्ट टाइम बॉम्बे वाले से 20 लाख आ गया, तो जो पहले था वो 10 लाख की चोरी कर रहा था. जितने साल था उसने उतने लाख चोरी किया. लाहौर का था. So this Iqtadari system was very simple, very effective, with which Iltutmish controlled the administration, and of course he had a very good military. कैसे? इनके पास 10,000 की सेना,
इनके पास भी 10 की है, इनके पास भी 10 की है। जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी, सपोज आई विल तुतमिश, आई विल आस्क हेल्प, दीज पीपल विल गिव हेल्प। अब मान लीजिए इन दो ने नहीं, इन दो ने भेजी, इन्होंने सेना नहीं भेजी, तो आएगा चंगेज सजा देने। ही विल नो दैट किसकी सेना नहीं पहुंची है। तो अगेन यू आर कॉट, एनी nefarious tendencies will be caught by Iltutmish at once. Understood this? अब ये तो बात हुई that these people were sent to serve the empire of Iltutmish. Now in code, कोड समझ रहे आप लोग? ये इल्तुतमिश का कोड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बैठेगा कौन? हिंदू तो नहीं बैठेंगे, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम भी बैठेंगे। मुस्लिम्स भी कौन? दोज पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, मींस तुर्क्स। तुर्क आप लोग समझ रहे हो? बिकॉज इल्तुतमिश हैड मर्डर्ड आराम शाह, तो इसके जो सपोर्टर्स होंगे आराम शाह और ऐबक के, क्या वो इसको कभी सुल्तान मानेंगे? नहीं मानेंगे। So there was a political vacuum created when Iltutmish came to power. आप लोग समझ सकते हैं? History is not only facts, it is understanding it. So now who will support Iltutmish? He needs support in the court also. So Iltutmish established what is called as Chalisa. Turkan e Chehelgan e Chalisa. These were slaves. Chalisa. But अली बाबा चालीस चोट उसका पासवर्ड क्या था? हम लोग यहाँ कर रहे हैं खुले से। बट द 40 मेंबर वर नॉट 40, ये 40 नहीं थे, इनको बोला गया 40, ये 36 या 38 थे। अंडरस्टूड दिस? ग्रुप में को क्या बोला गया? 40। एंड दीज पीपल, दिस ग्रुप वाज सेटिंग। क्यों? दे वर ऑफिसर्स, दे वर एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे वर इक्तादार्स। Iltutmish had these 40, near about 40 loyal servants who served. They were warriors, they were police during peacetime. Understood this? That is why Iltutmish, who was not getting any support, and he did not wanted any support from old Turkish nobility, which was against him, because he was a murderer. He murdered Aram Shah. Then also under these challenges, Iltutmish had a vision that he established the Delhi Sultanate. Yes, आगे बढ़ो। अब सल्तनत बनेगी कैसे? पैसे से। कोई भी काम दुनिया में पैसे से ही होता है सर। पैसा ही बाप है, बाप से कम भी नहीं है। इल्तुतमिश इस बात को जानता था। He started what is called as two coins. एक को बोलते थे हम जीतल, it was a copper coin. अदर को हम बोलते थे टंका, टंका was a silver. इल्तुतमिश ने ये अरेबिक कॉइनेज शुरू करी थी। It was having Arabic standards. Why? Because India will do business with the Muslim world. So Tanka and Jeetal were standard currency, and they will be standard currency for 200 standard currency. So now economic problem solved. People got freedom of exchange. These new kings, Muslim kings, they were very much interested in arts. मैं जब आपको एंशिएंट पढ़ाऊंगा, एंशिएंट इंडिया में हमारे पूर्वज कभी युद्ध करते ही नहीं थे। लव लव लव, तभी आज हमारी हालत है। हम 150 करोड़ प्लस बाई डिफॉल्ट। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम जोड़ लें, हम 200 करोड़ पार हैं। चाइना हमारे आगे कहीं नहीं खड़ा, वो रेस बहुत पहले हार चुका है। जिनपिंग को नहीं पता हम कितने हैं, क्योंकि आलू और इंडियंस दुनिया भर में है। We are carrying out a silent revolution. Slowly and slowly, Canada, England, South Africa, Fiji, जहां भी जाओ हिंदुस्तानी तो टिकेगा ही नीचे।
And by the end of this century, India may or may not be developed country, but everywhere there will be India. इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास में ही देता हूँ। जब हम ही इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड डेवलप कहाँ से होगा? हम डेवलप हुए ना। और इस काम को सब करने में लगे हैं, पढ़ पढ़ के एमएनसी में ज्वाइन कर रहे थे, दोनों क्या कर रहे हैं, बस उनका एक पर्पस है, जीवन में पैसा कमाएं और शादी करें। They have to produce another soldier. He has to fight another war to produce another generation. Understood this? आगे बढ़े। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आदमी जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या करता है? जब सब कुछ हो गया, यू आर हैविंग टाइम, इसमें का शादी करना है, तो की पहली बेगम, ये तो एबल की बेटी ही थी, इसका नाम कुतुब बेगम। क्या नाम था? कुतुब बेगम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शादी हो गई। द नेचुरल आउटकम वाज चिल्ड्रन, पहला बच्चा। His first child was नसीरुद्दीन। सब जगह खुशी का माहौल आ गया जब नसीरुद्दीन दुनिया में आ गया। Everybody was happy. Second attempt, सक्सेस 6 बार फ्री दे सकते हैं ना। और इस टाइम कुतुबुद्दीन लाना कोई आप किया गया। ओके, लेकिन इल्तुतमिश ने सबसे बड़ी गलती कर दी। एक तो गलती कर ही चुका था, एक गलती इसने ये कर दी, लड़ाई हुई होगी कुतुब बेगम से, तू क्या था? तू गुलाम था, मैं हूँ कुतुब बेगम। बोला ऐसी की कैसी कुतुब बेगम तेरी? इल्तुतमिश ने अपने यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी से शादी कर। नौकरानी का नाम था शाहतुर्का। क्या नाम था? शाहतुर्का। शादी नहीं करी, इसको मलिकाए जहान बना दिया। बोले यू आर माई फेवरेट क्वीन। 1 2 3 first child of Shah Turkan and Iltutmish was called Muk, U, Nu, Di, Second child was very Besharam, Behram, या बहराम शाह। तीसरे को तो खुद नहीं पता था वो किसका बेटा है, इल्तुतमिश का या रुकनुद्दीन का, पर इसका नाम था मंसूर शाह। पिता अज्ञात। Even historians are not able to solve this mystery. It is normal. हरम के लाइफ में everything was very confidential. The historians have this information that the 2 upper ones were from Iltutmish, the third unknown. And why we are revising or learning this? Because after the death of Iltutmish, these people will become sultans one by one. कैसे? नसीरुद्दीन will die during his own period. आखिरकार तुमने भी तो किसी के बेटे को मार के गद्दी पाई थी, जैसा करोगे वैसे ही तो करोगे। Yeah, right. He was the ablest son, but he died. His tomb is first funerary monument of medieval period called Sultan Gadi. This question came in. जब दफनाए जाएंगे सबसे पहले कौन दफनाया गया? ये जलेंगे नहीं ना, हमारे वाले तो आग लगा के ड्यूटी करते हैं, इनको तो अपना चाहिए। सेकेंड, रजिया। इल्तुतमिश के तुरंत मरने के बाद गद्दी तो चाहिए होनी चाहिए थी रजिया की, लेकिन किसको मिली? शाह तुर्कान के बेटे रुकनुद्दीन। 36 से 40
40 से 42 सब जगह 12 में बहराम शाह, 42 से 46 मसूद शाह. Nasiruddin died, but after his death, a miracle happened. His widow delivered a baby, posthumous son. मरने के बाद एक बच्चा हुआ. इस बच्चे को ले जाकर के इस विधवा ने इल्तुतमिश की गोदी में रख दिया. बोले डैडी. Iltutmish was very happy to see the child of Nasiruddin. Here to be continued. So that is why this child of Nasiruddin was named as Nasiruddin. He will also become king from 46 to 66. So this period of 30 years in which sons and daughters of Iltutmish will rule is called as the rule of 40. Fine? ये जो 40 का दल था, ये 20-25 साल तक इसने इल्तुतमिश की सेवा की. ओके, और चोरी कर करके सब ताकतवर हो गए. इनके पास अपनी सेना भी थी और उस समय ये रूल दैट द बेस्ट, द मेरिटोरियस, द कैपेबल विल बिकम सुल्तान. इल्तुतमिश ये तो जानता था कि उसने 40 के दल को बनाया है, पर वो ये भी जानता था कि अगर ये ज्यादा ताकतवर हो गए तो कभी भी इल्तुतमिश को मार देंगे. वो बोलते भी थे, तूने क्या किया जो हम नहीं कर सकते, तेरे पास बता कितना पैसा है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तुझसे भी ज्यादा ताकत है. जहाँ उसको पता था कि ये सारे के सारे 40 के दल के तो और अगर आप इल्तुतमिश की जगह होते, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? तुम्हारे ही गुलाम तुमसे ज्यादा ताकतवर. आपने अपनी जवानी तो काट ली, आप सफल बादशाह नहीं बने. क्या करेंगे, कैसे इस आने वाले खतरे को अवॉइड करें? तो इसी सोच में डूबा, क्योंकि वो जानता था मेरे मरने के बाद ये लोग मेरे बच्चों को मौत के घाट उतारते हैं, राजा बुरी की तरह. खलीफा ने चिट्ठी भेजी कि इल्तुतमिश खलीफा तुमसे खुश है, तुमको वो सुल्तान बनाता है, दिल्ली को इस्लामिक राजधानी बनाता है, दिल्ली वॉज मेड इस्लामिक कैपिटल, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे के बच्चे ही तरक्की कर रहे हैं. इस चिट्ठी को दिल्ली के दरबार में लाया गया और सबके सामने पढ़ के सुनाया. 40 का दल जब इन चिट्ठी को सुना वो खुश होंगे या दुखी, पर कोई भी मुसलमान खलीफा के आदेश के खिलाफ तो नहीं जा सकता था. अब जब ये 40 का दल खुद सुल्तान नहीं बन सकता था तो इनको क्या चाहिए देखा? तो ये सारे बच्चे क्या सुना देते हैं? Understood this? So that is why the weakest was made the king. कभी कभी लाइन उल्टी शुरू हो जाती है. That is why you see that Razia, the most competent, was not given the post. The last expedition of Iltutmish was at place called Baniyan. ये वो बनियान नहीं जो आप समझ रहे हो. It is in some books it is Bamiyan. Okay. इल्तुतमिश जब इस अभियान से लौटा तो बीमार पड़ गया, उसको बुखार आ गया. इल्तुतमिश जब मरने वाला था तो उसने अपने 40 के दल को लोगों को बुलाया और बताया कि मैं जानता हूं कि नसीरुद्दीन के मरने के बाद मेरी एक भी औलाद लायक नहीं है, सब नालायक. Right? So he told to his friends and 40 people that my wish is that after me, my daughter will become
next sultan. And this was not new to the Islamic traditions of Europe, of medieval India or medieval world. We see number of women kings. Even in a Islamic society, number of daughters, they were made sultan in absence of any legal tyrants. And they successfully ruled. But in India, 800 years back, this was not the rule of law. These Chalisa people who were already angry with Iltutmish, they knew that if Radia will become the Sultan, she will be very, very powerful. And to play this game of thrones, they need a weak, not a strong. That is why, after the death of Iltutmish, they did not approach Qutb Begum for the legal hire, but they approached Malika Jafar. हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ एक मैं बंद कर देता हूँ को आई हैव टू लीव इसको बंद कैसे ऐसे करते ना फोन अब ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना नहीं हो रहा ना इसमें लाल जल रहा है रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर एक चाय वाला पीएम बन सकता है एक पानी बेचने वाला पीएम बन सकता है तो एक नौकरानी का बेटा कभी गद्दी पर बैठ सकता है इसीलिए चालीसा के दल के लोगों ने शाह सुल्तान खान को पकड़ा शाह सुल्तान खान को अपनी जवानी की उम्र से ही ताने सहरी की नौकरानी काम वाली चारू पोछे वाली तुमको लगता है कुतुब बेगम इसीलिए शाह सुल्तान खान ने जुर्मिश बनने के बाद हंटर पकड़ा बोले अब बताती हूँ शाह बेगम अब चला घर का ड्रामा बाहर का ड्रामा दिस वॉज लाइफ एंड टाइम्स ऑफ But you have to understand why the rule of 40 started. Who were the Chalisa people? What was the politics going on? Internal and external. External. Nasiruddin को बच्चा बंद हो गया यार और कैसे होगा ऑनलाइन तो पैसा नहीं मिलेगा कहाँ पे कहाँ होगी हाँ एक्सटर्नल देखो एक्सटर्नल में देखो आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान डाइड इन 1227 Genghis Khan died in 1227 okay Genghis Khan has already captured a large part of world clear so he destroyed ताजुद्दीन यल्डोज नाम याद आया ताजुद्दीन यल्डोज जब सब कुछ गजनी का हार गया he came towards Delhi why because he can challenge Iltutmish because Iltutmish was not the royal person he was a local person Iltutmish was not slave of Gauri the empire was distributed among the slaves of Gauri Iltutmish was slave का भी slave था Understood this? Right. So he challenged third battle of Tarain was fought. Third आप लोग समझ रहे हो? Third battle of Tarain was fought when Iltutmish defeated Tajuddin Yaldor, imprisoned him at Badaयूं and murdered him in cold blood. Now this area, Iltutmish was free, but the remaining area of Sindh and Makran समझ लो इराक का border है Makran. Iltutmish was the only king whose borders met or went as far as Iran. Iltutmish defeated Nasiruddin Kubacha 2 times. Nasiruddin Kubacha, who was already an independent king of Sindh. Iltutmish in 1227 defeated Nasiruddin Kubacha. इस सिंधु नदी में कूद के इसने आत्महत्या कर ली इतना इसको परेशान किया एक तरफ मंगबंदी और दूसरी तरफ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी खत्म इंटरनल भी खत्म he even got recognition from Khalifa this recognition on this letter made Iltutmish the real founder of Khilafat and of course
his stretch in which he saved the independent India. आगे बढ़ पढ़ने का मूड है टाइम है छोटे में निकालू थोड़ा पॉइंट में निकालू देखो he was son of Ilam Khan son of Ilam Khan son of Ilam Khan लिख लिया sold SOLD in Mongol market in Mongol slave market in Mongol slave market purchased by Jamaluddin Chust Kaba purchased by Jamaluddin Chust Kaba Chust Kaba Gauri prohibited his sale in his dominions Gauri prohibited his sales कहते ना खूबसूरती कभी कभी नुकसानदायक होती है वही हालत थी इसकी prohibited his sale in his dominions finally he was purchased by Avar finally he was purchased by Avar on the death of Avar on the death of Avar he was governor of Badayu he was governor of Badayu the armies of Delhi invited Iltutmish armies and nobles like this you can write the armies of Delhi invited Iltutmish to take the throne of Delhi in turbulent times invited Iltutmish to take the throne in turbulent times next point Iltutmish defeated and murdered Aram Shah, the son and successor. Iltutmish defeated and murdered Aram Shah, the son and successor of Avar. एक तो भाई को मार डाला और दूसरा बहन से शादी कर दी. He married कुतुब बेगम, daughter of Avar. मतलब इसने अपने साले को ही मार डाला. आराम से इसका साला हुआ ना. Right? Kingship knows no kinship, sir. Understood this? He married Qutub Begum, daughter of Avar. He took the title of Sultan-e-Hind, Hindgir, second Hatim. He took the title of Sultan-e-Hind, Hindgir. Hindgir लिख लोगे? HINDGIR, Hindgir. Sultan-e-Hind. Second Hatim. सेकंड हातिम समझ लो. हातिम का ही सुना है. सेकंड हातिम यही थे. सेकंड हातिम फिर हम लिखे हैं बोर्ड पे फैमिली हिस्ट्री. सुल्तान हातिम लिखिया. ही वॉज फॉलोवर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ही वॉज फॉलोवर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ही वॉज फॉलोवर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. Even Moinuddin Chishti visited his court. Even Moinuddin Chishti Ajmer, when he was alive, he visited his court. Moinuddin Chishti visited his court. Clear? अब लिखो, he established Turkane Chehalgane Chalisa. He established
तुर्काने चहलगाने चालीसा, तुर्काने चहलगाने चालीसा, the group of 40, तुर्काने चहलगाने चालीसा, the group of 40. Actually, they were 36 or 38 in number. In no case 40. We have the life biographies of 36 slaves of Chalisa. Not important in GM. We have their names also. Don't worry. Okay. Next, Nico. He started Arabic coinage. Arabic coinage. Copper cheetal, silver tanka. Started Arabic coinage. Copper cheetal, silver tanka. Cheetal, Jittal, silver tanka, to facilitate trade. To facilitate trade. He started Iqtadari system. He started Iqtadari system. Iqta was a small land unit. Iqta was a small area. Iqta was a small area under the charge of. It was a small area under the charge of Iqtadar. Under the charge of Iqtadar. He was responsible. He was responsible to suppress. He was responsible to suppress the local feudal lords. Responsible to suppress the local feudal lords. Collection of revenue. Collection of revenue. Maintenance of peace. Collection of revenue. Maintenance of peace. Bracket में लिख लो. King cannot rule without army. King cannot rule without army. Army needs salary. सेना कभी बिना पैसे के नहीं लड़ेगी. कौन फ्री में जाके जान देगा? Army needs salary. Salary will come from farmers. Salary will come from farmers. Will come from farmers. When there is peace and prosperity. When there is peace and prosperity. Clear? आगे बढ़े. देखो, अब देखो इल्तुतमिश फैमिली. Iltutmish family. His first child was Nasiruddin. His first child was Nasiruddin, who died during his lifetime. Who died during his lifetime. Who died during his lifetime. During his lifetime. Buried at Sultangadi, Delhi. Buried at Sultangadi, Delhi. The first funerary monument belongs to him. Sultangadi लिख लोगे? The first funerary monument belonged to Nasiruddin. Second daughter was Razia, 1236 to 40. Second daughter was Razia, 1236 to 40. Third son was Kutubuddin. Third son was Kutubuddin. ब्रैकेट में लिख लो, मर्डर्ड बाय शाह तुर्कान.
murdered by Shah Turkan. अब लिखो शाह तुर्कान, TURKAN, शाह तुर्कान 40 Razia. We will discuss in detail Razia, don't worry. नेक्स्ट देखो, इल्तुतमिश मैरी झाड़ू पोछा वाली, और कैसे लिखोगे? ओ होम मेड. इल्तुतमिश मैरिड अ मेड सर्वेंट, वेरी ब्यूटीफुल. ये लिखना नहीं है, दिस आई स्पीक टू क्रिएट अ इमेज. मेड सर्वेंट लिख सकते हो, क्या लिखा? इल्तुतमिश मैरिड मेड सर्वेंट शाह तुर्कान and made her Malika-e-Jahan. Iltutmish married maid servant Shah Turkan and made her Malika-e-Jahan, the first queen. These words are very common words in medieval. Okay, Malika-e-Jahan. Every king will have Malika-e-Jahan. Okay, right? Malika-e-Jahan. Even Ashok had a queen named Padmavati. Understood this? Padmavati, the title stands for the most beautiful queen. The most beautiful is Padmavati. A common queen, Palagani. मतलब a commoner. Like England prince married a commoner. देखिए रॉयल लोग जो होते हैं वो लोग लोकल से शादी नहीं करते. उनका कहना ये है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, जंगल में एक ही राजा होता है, दिस इज द नेचुरल लॉ. हम कॉमनर्स क्या कहते हैं? टॉक अबाउट हमारे पास है कुछ नहीं, एक बीघा जमीन भी नहीं है हमारे पास, मेरे पास ही नहीं, हमारे पास क्या होगी? हो सकता है होगी. लेकिन वी टॉक वेरी हैवी अबाउट डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, तो सबको इज्जत नहीं मिल रही. हमारी जो पावर है वो ये है कि हम एक साथ रहे, डेमोक्रेसी में चुपचाप वोट करते रहे, नहीं तो क्या होगा? फिर कोई औरत देवर. History repeats itself until and unless we don't commit the same mistake again and again. Understood this? देखो, Shah Turkan gave birth to Shah Turkan gave birth to Rukunuddin Firoz. रुकुनुद्दीन फिरोज, यही नाम है. मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है. रुकुनुद्दीन फिरोज, ब्रैकेट में लिख लो, सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश 1236. सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश 1236. अगला लिखो बैराम शाह. बैराम शाह 1242-42. बैराम शाह 1240 से 42. अगला लिखो मसूद शाह, फादर अननोन. लिख लो ना, क्या लिख रहे हो? अपनी कॉपी में तो लिख रहे हो, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख रहे हो? कुछ भी लिख लो यार, ड्राइंग बना लो मसूद शाह की, क्या लिख रहे हो? नहीं, प्योर कॉपी. मसूद शाह फादर अननोन, अब तुमको याद रहेगा. ओके, अब देखो थर्ड बैटल ऑफ तराइन. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 AD. थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 AD. इल्तुतमिश defeated ताजुद्दीन यल्डोज. Iltutmish defeated Tajuddin Yildiz, imprisoned him and murdered him. Iltutmish defeated Tajuddin Yildiz, imprisoned him and murdered him. अब लिखो, after the death of Genghis Khan, after the death of Genghis Khan, Iltutmish defeated, Iltutmish finally defeated, Iltutmish finally defeated Nasiruddin Kubacha, Nasiruddin Kubacha
+2. Nasiruddin Kubacha, the king of sin. The king of sin. Okay. He extended his territory. He extended his territory up till Bamiyan, Makran, up till Makran coast. He extended his territory up till Makran coast, Iran. There is a fort called Chabahar. ये इसके बगल में ही है. So now you can imagine the territory of Iltutmish कहाँ तक पहुंची थी. Okay. अब देखो in 1229, Iltutmish received a letter from Khalifa Al-Qadir. मैंने बताया जरूरी नहीं. Iltutmish received a letter from Khalifa Al-Mutanasir Billah. इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. दर्जा आदमी रात को पढ़ लेगा. मैं पक्का मारूंगा निकलने नहीं कौन. Letter from Khalifa. Khalifa declared Delhi Islamic capital. Khalifa declared Delhi Islamic capital. Declared Iltutmish Sultan of Delhi. Declared Iltutmish Sultan of Delhi. Sultan of Delhi. His recognition had Iltutmish. His recognition had Iltutmish. कैसे हेल्प किया था? By establishing hereditary monarchy. By establishing hereditary monarchy in Delhi. Hereditary monarchy means after you, your sons. Okay? Right? By establishing hereditary monarchy. This is the reason that Iltutmish is called as real founder. This is the reason that Iltutmish is called as real founder of Delhi Sultanate. Of Delhi Sultanate. He built White Palace in Delhi. He built White Palace in Delhi. To solve the problem of water scarcity. To solve the problem of water scarcity, he built Hauz-e-Shamshi. He built Hauz-e-Shamshi. Hauz-e-Shamshi. Okay. He completed the work of Qutub Minar 2, 3, 4, 5. No, 2, 3, 4 stories. He completed the work of Qutub Minar 2, 3, 4. 5 नहीं है, 2, 3, 4 stories. Okay. आगे बढ़े. His last expedition was of Banyan. His last expedition was of Banyan. Banyan. He came back and died. He came back and died. Before his death, he declared Razia to be the next Sultan. Razia to be the next
Sultan. But the nobles were not ready. But the nobles were not ready to accept Razia as their king. They sided with Shah Turkan. They sided with SIDE, sided with Shah Turkan and placed Rukunuddin Firoz on the throne. Rukunuddin Firoz on the throne. I will include the very important. सुल्तान ऐसे ही होना चाहिए. क्या फायदा मिला अकबर को इतने सारे काम करके? हमारा सिलेबस ही बढ़ा दिया. सबसे अच्छा राजा वो जो सबसे ज्यादा अय्याशी करे. क्यों? एक लाइन में कंटेंट खत्म. राइट और रॉन्ग? ज्योग्राफी नेवर चेंजेस. हमने जीता, तुमने क्या जीता? माउंट एवरेस्ट इज देयर. क्लियर? एवरीवन हैज टू डाई एंड गो. जबरदस्ती राजपूत पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, क्या करना है यार? अंग्रेज अरे यूरोप में रहते, चले आए हिंदुस्तान सिलेबस बढ़ाने के लिए. राइट और रॉन्ग? हम काली मिर्च वहीं पहुंचा देंगे उनको, माने नहीं, लेकिन हम ही ले जाएंगे, करने का ले जाओ. कोहिनूर एक हीरा, यहाँ कभी वहां कभी वहां, सिलेबस बढ़ता है यार. लोग समझते नहीं है मेरी बात. सुल्तान बन गए हो, चीफ मिनिस्टर बन गए हो, क्या जरूरत है ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, राजीव गांधी योजना, ये योजना. राइट और रॉन्ग? उसमें चंगेज खान भी चले आ रहे हैं. चलो नेक्स्ट लिखो, रजिया. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मैडम, रजिया से नाम की इज्जत से लिखो यार. सुल्तान है तुम्हारी, तुम होती तो सलाह कटवा देगी अभी. तो हर एक सुल्तान को नए पन्ने से लिखिए. समझते नहीं हो तुम. रजिया, चल इसकी कहानी मैं बता दूं, इससे खत्म करेंगे. कितना टाइम हमारे पास? 20 मिनट है ना? नहीं देखो, अगर रजिया शुरू होगी तो खत्म होगी. बीच में मत करना कितना रखी कर दो. ठीक है? पता लगे रजिया का भूत रात को क्लास में घूम रहा है कि टॉपिक एंड नहीं हुआ. देखिए, we know this that the nobility was not ready to make Razia king. Why? It was very simple. They required a pappu. Pappu here means जो आप सोच रहे हो वो नहीं. It means a weak king. Why weak king? So that the Chalisa girl can play politics. Understood this? तो चालीसा के दल के लोगों ने यह फैसला किया कि वो शाह तुर्कान भी तो इल्तुतमिश की पत्नी है, मलिकाए जहान है. Instead of using this blood, we can have this blood of Shah Turkan, mixture little bit. But it was the royal blood or not? It was blood of Iltutmish running in the veins and arteries of all the sons. So they selected Rukunuddin Firoz. He was put on the throne. Okay? But the real power now vested with Shah Turkan. क्यों? वो सुल्तान की अम्मा बन गई, पहले सुल्तान की पत्नी थी. And the entire politics, the game of thrones was led by Shah Turkan. अब हुआ क्या, एक साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर शाह तुर्कान ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन को मौत की घाट उतारा. कौन कुतुबुद्दीन? द थर्ड सन. थर्ड सन समझ रहे हो? दिस. अब जब कुतुबुद्दीन को मौत की घाट उतारा गया तो नसीरुद्दीन पहले मारा जा चुका था. कौन? रजिया. रजिया ये समझ गई अब नंबर मेरा है. हम हिंदुस्तानी जैसे भी है, जब तक हमसे बात नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं करते. हमारे पड़ोस तक हम जल भी जाए तो भी हम पानी नहीं मारेंगे, हम तमाशा देखेंगे.
हमारे लोग इतने फ्री हैं कि वो जेसीबी की फ्लाइट देखने के लिए खड़े रहते हैं। Understood this? ये हमारे डीएनए ऐसा ही है। तो जब रजिया का भाई मर गया तब रजिया जागी, और जब ये जागी तो इसने पहले लाल कपड़े, रेड। उस दिन जुम्मे का दिन था, फ्राइडे, और रजिया जामी मस्जिद पहुंची और सीधे उसने वहां जाकर के बोला कि ये गलती मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी है, बिकॉज द पीपल ऑफ दिल्ली लव रजिया वेरी मच। वो रजिया को उन्होंने पलते हुए बड़ा होते हुए देखा था। रजिया was Sultan's daughter. Everybody knew that she is Razia. Razia was given the same training, same education as his brothers. Understood this? So Iltutmish did not differentiate between a boy and a girl. And the vision of the Sultan helped him that at least he left a survivor who was fit to become next Sultan. And Razia was given the responsibility, administrative job in absence of Iltutmish after death of Nasiruddin. Whenever Iltutmish was out of the capital, the main work was done by Razia in the name of the king. Iltutmish was, when he returned, he was shocked and surprised to see that Razia behaved like a king, like a de facto king, but the work was done in the proper way. Then only he realized, भाई I आदमी अपनी बेटी को गद्दी तभी देगा जब वो उसके लायक होगी। तो रजिया जामी मस्जिद पहुंची और रजिया ने लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए बोला कि ये गद्दी मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी, लेकिन इन चालीसा के दल के लोगों ने इसे रुकनुद्दीन फिरोज को दे दिया, और रुकनुद्दीन फिरोज ने अपना जो हाल किया वो किया, तुम्हारा क्या हाल कर दिया। पीपल वर वेरी अनहैप्पी इन दिल्ली एट दैट टाइम। और जहां उनको ये पता चला कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को गद्दी दी थी, ये लोग चीखने और चिल्लाने लग गए। इतने ज्यादा लोग थे कि रजिया इनकी मदद से ही गद्दी पर बैठ सकती थी। तभी वहां मौजूद चालीसा के दल के लोगों ने तुरंत फैसला लिया कि रजिया को गद्दी पे बैठा दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब मारे जाए। The people support Razia became king with people support, not with the support of the nobility or Chalisa. Clear? All nobles were not ready to make Razia the Sultan. That is why when Razia came to power, his court was a divided court. Razia became Sultan in 1236. Now, the Chalisa people will be happy or sad. You can say some will be happy, some will be sad. Some people supported Razia in becoming king. Okay? So, these people were given important posts like Kabir Khan, Ayaz, Altunia. They were earlier members of Chalisa, but to gain the royal favor, they joined Razia, and they were young. Razia was their first crush. Understood this? Right? ये चालीसा के दल के लोगों से बैठ लेंगे तुम लोग समझ जाओगे। आगे बढ़े। अब देखो, अब आप लोग को सोचिए, अगर आप लोग रजिया की जगह होते, नॉट बॉयज, गर्ल्स, ओके, तुम लोग रजिया कभी नहीं बन सकते, तो आप क्या करते ये जान करके कि चालीसा का दल आपके खिलाफ है, लोग आपके समर्थन में है, पर लोग मंत्री नहीं बनते, और शासन चलाने के लिए यू नीड हैंड्स। तो आप इस चालीसा के दल के लोगों के साथ क्या करेंगे? ये आपके सबसे बड़े दुश्मन, ये बुनियाद आपको तख्त पे बैठा देखना नहीं चाहिए। हाउ यू विल कंट्रोल दिस 34 पीपल? चलो दो तो हम चलेगा कोई, बट स्टिल देयर 34, क्या करें? And without the help of these people, you cannot run administration. It is not one man army. खलीफा मैडम वो अपने में मांगी, खलीफा को क्या मतलब चिट्ठी मांगी थी for this 34 people, na? हाँ, We can divide and rule, na? Like we can break their unity, their strength. 34 people, we'll divide them. ये तो काम रजिया का बाप भी नहीं कर पाए। She can do that, na? She can. How?
she'll do that. She'll obviously find the loophole. What is the strength? She'll finally attack on that strength. वो कर दिया था, दो ही टूटे केवल, only two. अब क्या करें? और क्या करेंगे? Boys who think like Razia, तुम क्या करते हो? नहीं यार, तुम लोग उल्टा ले जाते हो. नहीं, see, Sultan has a brain. ठीक है? Each time with the change of Sultan, we will see the change of tactics and policy. Understood this? अब सवाल ये था कि आखिरकार रजिया या तो इन सबको मार देती, इनको मारना पॉसिबल नहीं था, because they were equally powerful. So what was going on in the court politics, that the people were in the power, Chalisa group was in the power, it was most powerful group, but they disliked Razia. And they were not able to remove Razia. The anxiety was this, that these people united were not able to do what they like. Because people of Delhi made Razia the king. And Razia was responsible not to these people, but to these people. This is very rare in history of India, that a king is responsible for people, accountable to the people. क्योंकि रजिया ने कहा था कि तुम मुझे बनने का एक मौका दो, अगर मैं सुल्तान नहीं बन पाई तो मैं फिर गिनी आऊंगी, तुम मुझे क्यों सजा दोगे, मुझे वो करो. दिल्ली की जनता ने आज तक जिससे प्यार किया है वो मारा गया है. दिल्ली की जनता ने रजिया से प्यार किया, वो मारी गई. दारा से प्यार किया, उसका तो सरकार के हाथी में घुमाया गया था. इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल से मोहब्बत कर रही. मैं कहता था केजरीवाल नहीं बचेगा, लोग नहीं मानते थे, पर इस बार दिल्ली की जनता ने वो प्रेम वापस खींच लिया. अब केजरीवाल पंजाब बन के मंगल बन के भाग रहे. दिल्ली की जनता का प्रेम बहुत खतरनाक होता है. These people in Delhi sitting are in the capital itself, right? So क्या करेंगी? How you will control these elements? क्या करेंगी? कैसे रिप्लेस करें? Common people and say it's smart रहेगा. 50% you are right. They need replacement, but from where they will bring? These are Turks. These are foreign immigrants. Understood this? This land is not their motherland. They are not natives. They are here for greed. रजिया ने भी एक विदेशी पकड़ लिया. विदेशी, he was a senior. इधर नहीं, इधर. He was close to Razia. This man was called Jalaluddin Yaqut. He was Black Africa from Pope. Ethiopia is present name. FCER is, you know, in geography you have a topic, old names, new names. Right? So कुछ कहते हैं, मैं भूल गया. अब Razia is happy. Yaqut was made Amir Akhur. इसको क्या बना दिया गया? Amir Akhur, the master of royal stables. Because cavalry was most important branch at the time of army, he was made head of the cavalry. अब याकूत और रजिया मिलकर ग्रुप बना लेंगे. अब जो रजिया पूरे तरीके से इतनी दुश्मन हो गई कि नहीं हो गई, क्या याकूत के साथ घूम रही है. Whenever you have your enemy as a girl, आप कुछ नहीं कर सकते उसका. I am telling you. But you have only one last arrow. That is character assassination. अरे ऐसे ही है. इतना भी अगर आपने बोल दिया, this amounts to the murder. इन लोगों ने भी यही बोलना शुरू कर दिया, अरे वो तो याकूत के साथ आजकल घूम रही है, घोड़े की सवारी कर रही है, तो क्या तेरे साथ करेगी घोड़े? A sultan will, in protocol, will do the horse riding with the head of the cavalry or not? एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक देखा कि रजिया जब घोड़े पे बैठती थी तो याकूत पहले हाथ आगे करता था,
फिर रजिया खींच करता था और फिर कमर को पकड़ता था। ओह माय गॉड, फिर तरंगे छूटती थी, ऐसी तरंगे छूटती तो मेट्रो बिना लाइट के चलती। Right or wrong? So these people, they have written the real history, imagining Rabi'a and Yaqub to be lovers. But that is not history. How we came to know that there was something going on between Razia and Yaqub? We want evidence, sir. Evidence came from Ibn Battuta. Even the foreigners were interested in this relation. What happened? Razia Kundo में फंस गई। Razia Kundo में नहीं फंसी सर। Razia was ruling as a king. She ruled for 4 years. She failed. वो फेल नहीं हुई थी। She was killed by these. Try to understand. जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने रजिया के कैरेक्टर पे दाग लगा दिया। अब जब रजिया के कैरेक्टर पे दाग लगा तो किसको दुख होगा? तुमको, मुझको नहीं, इन दोनों। अंडरस्टूड? बचपन की मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। तो कबीर खान अयाज was governor of Lahore and Multan, who was the first to revolt against रजिया। एक तो दिल का दर्द था, ऊपर से सामाजिक व्यवस्था। कबीर खान अयाज के विद्रोह को दबाने के लिए याकूब और रजिया दोनों पहुंचे। कबीर खान अयाज was defeated, but his place was not changed. He was still governor of Lahore and Multan. They were very important provinces. Clear? रजिया उसके बाद दिल्ली पहुंची। जैसे ही दिल्ली पहुंची, रमजान का महीना था, रोजे का समय था, गर्मी चल रही थी, मई जून की। लेकिन तभी खबर आई कि साहब भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अगेन भटिंडा वाज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने जब विद्रोह कर दिया तो रजिया और याकूब फिर से तैयार हो गए। मेहनत करनी है, चलो अच्छा। भटिंडा के किले के नीचे ये लोग पहुंचे, तभी याकूब को मौत के घाट उतार दिया गया। No? Yaqub was a foreign element. He was foreigner in foreigners. ये सब भी कोई देश के नहीं थे, विदेशी थे, तुर्क थे, बट वो ज्यादा दिखने में भी, समझ रहे हो ना, क्या कौन सा वो क्रिस्टियन टाइप, वो अलग से दिखता था, ये याकूब है। अंतुनिया अरेस्टेड रजिया आफ्टर। जब रजिया अरेस्ट हो गई तो दिल्ली में इन लोगों को लगा कि वो मर गई। अगेन दे वेंट टू शाह तुर्कान, बोले हमको एक और बेबी चाहिए। शाह तुर्कान बोले ये बेशरम बैराम खान ले जाओ, बैराम शाह, इसको गद्दी पे बैठाओ। बैराम शाह को गद्दी पे बैठाया गया। सारी पोस्ट चालीसा के दल के लोगों ने आपस में बांट ली। सब खुश थे, मजा आ गया, रजिया भी खत्म, याकूब भी खत्म। अल्तुनिया को जब पता चला कि दिल्ली में कोई पोस्ट उसके लिए नहीं रखी गई, अल्तुनिया के पास तो he had that golden goose still alive. अल्तुनिया ने रजिया से now both started to Delhi from Bhatinda. अल्तुनिया इस बात को जानता था कि एक बार दिल्ली की जनता ने रजिया को देखा तो दिल्ली की जनता फिर से चीखेगी, चिल्लाएगी और रजिया को गद्दी पे बैठाएगी। अल्तुनिया का सिर्फ इतना सा काम था कि रजिया को भटिंडा से जीवित दिल्ली पहुंचाना। क्लियर? गर्मी का समय था और बैराम शाह इस बात को जानता था कि अगर रजिया दिल्ली पहुंच गई तो उसका भी वही हाल होगा जो रुकुनुद्दीन फिरोज का हुआ था। इसीलिए बैराम शाह ने अपने लोगों को भेज दिया, बोले रजिया को जहां भी देखो मौत पे घाट उतार दे। अल्तुनिया और रजिया पेड़ के नीचे एक दोपहर आराम कर रहे थे, तभी इसके लोग पहुंच गए। इन लोगों ने 3 मार करके दोनों को मौत उतार दी। जिस जगह पे आराम कर रहे थे उस जगह से क्या था, दैट इज व्हाई रजिया वाज मर्डर्ड एट कैथल, रजिया वाज बरीड एट कैथल। टू बी मोर स्पेसिफिक,
Where Razia was buried is called Bulbul Khana. आप सिंपल सा सवाल पूछेंगे, रजिया इज बरीड एट दिल्ली, शी इज बरीड एट the most important weakness of Razia was that she was a female. रजिया की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो एक औरत थी। अगर वो एक औरत नहीं होती तो रजिया मध्यकालीन इतिहास की सबसे बड़ी सुल्तान। She was so much. The only weakness of Razia was that she was female. Otherwise, she had all the qualities of head and heart of a sultan. She would have become most important medieval kings. See? So this is relevance of topic of Razia. The only inspiration to Indian women in medieval India. Business. छह बज गए, खत्म करेंगे, कल शुरू करेंगे। Any questions, any doubts you can ask for. I am sitting here on the don't worry. कल से पढ़ के आना। देखिए, अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे मैं आप बेसिक टैली करवा दूंगी, ठीक है? बट आई नीड योर कोऑपरेशन। You should start history now. See, we have seen history of 200 years. ठीक है, कर लोगे तैयारी? I can explain each and every event, each and every day. अगर आप बोलोगे सर इस साल में क्या हुआ था, what was the most important event, I can tell you. इस साल ये सबसे important घटना था. But you have to remember it, revise it, discuss it, and write it. Consolidation is very important. अगर एवर कंसोलिडेशन कर लेता तो इंग्लिश कभी याद नहीं करता। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। ये पानी लैपटॉप के यहाँ रखने पर गर्म हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे चमत्कार हुआ? एक बार मैंने पिया तो ठंडा था, अब फिर हम गर्म हो गया।